सबसे पहले ये समझते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एंड पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन, राइट। तो इनफिक्स होता है whenever operator is in between the operands, that is a और b के बीच में plus is present. Prefix होता है when the operator is present before the operands, and postfix is when the operator comes after the operands. Alright. Always remember this point that the order of operands remain the same. It doesn't depend on the expression. मतलब चाहे पोस्टफिक्स हो या प्रीफिक्स हो, तुम चाहे कन्वर्जन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मतलब इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, एक चीज़ नोटिस करो कि ए और बी का जो ऑर्डर है वो सेम है, एक बी ए के बाद आता है, एंड दैट इज मेंटेन्ड. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. So the order of operands stay the same, only the position of operators change according to their precedence or whatever the prefix or postfix it is. So now let's understand the operator precedence and associativity. This topic is important because I guess तुम लोग को एक बार just recap करवा देती हूँ. अगर पढ़ाया भी है इन्होंने तो you will just understand it better. So I guess most of you all already know this. Operator, exponent, multiply, divide and mod and plus minus, ये तीनों का इस तरीके से प्रेसिडेंस डिसाइडेड है. हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर का, देन कम्स मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, एंड द लोएस्ट प्रेसिडेंस इज ऑफ ऐड एंड सब्सट्रैक्ट. An important part that I would like to tell you is precedence basically decides the priority. मतलब कौन सा ऑपरेटर पहले इवैल्यूएट होगा. मतलब अगर प्लस और डिवाइड साथ में लिखा हुआ है किसी एक्सप्रेशन में, तो डिवाइड पहले होगा क्योंकि उसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है फ्रॉम प्लस. सो प्रेसिडेंस ये डिसाइड करता है. और अगर दो डिफरेंट प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स होंगे तो तुम ऐसे डिसाइड कर लोगे कि कौन सा पहले इवैल्यूएट हो रहा है, राइट. बट अगर सेम प्रायोरिटी या सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर आ जाता है, तुम्हारे पास दो ऑपरेटर्स आ जाते हैं, तब associativity comes into play. Associativity is basically it tells you कि अगर दो ऑपरेटर्स जो सेम प्रेसिडेंस के हैं, अगर वो साथ में एक एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, तब तुम्हें कौन सा मतलब तुम्हें कौन से ऑर्डर में उन्हें इवैल्यूएट करना है. सो हियर वी कैन सी प्लस माइनस जो है उसका लेफ्ट टू राइट है एसोसिएटिविटी, सो इट इज़ लेफ्ट एसोसिएटिव. एंड ए माइनस बी प्लस सी, अगर ये एक्सप्रेशन को हम अज्यूम करते हैं, लेट्स टेक इट दिस फॉर एन एग्जाम्पल. So the evaluation order, if that is to be understood, it becomes a minus b. a minus b पहले होता है because it's left to right, और left में कौन है, minus. तो minus पहले होता है, a minus b पहले evaluate होता है, and then we can do add with c. So I think this is clear. Left associative वाला part, mostly operators are left to right associative, ऐसे ही काम करता है. Only a few are right associative, one of which is the exponent operator. तो ये part अलग से थोड़ा बताना पड़ेगा. I'll just show you. Yeah. Other operators are left associative, so evaluation happens left to right. But the exponent operator, that is this one, is right associative, so evaluation happens right to left. That is, अगर a exponent b exponent c हुआ, this would become a exponent and b exponent c पहले evaluate होगा because it's right to left. यहाँ पे right वाला part पहले evaluate होगा, and then with this evaluated part you would evaluate the a to the power whatever exponent, a exponent ये this evaluated part. Okay, and just for your information, ये ऐसे evaluate नहीं होगा. This is a very important point. ये बहुत बार mistake हो जाता है लोगों से, so that is why I just clarified this point. Alright, now let's jump into our topic, that is infix. तो प्रीफिक्स हम करते क्यों हैं.
Like infix expressions are easy for humans to read. हम लोग के लिए a प्लस बी माइनस सी ये पढ़ने में आसान होगा, बट जब कंप्यूटर उस चीज़ को पढ़ता है ना, तो वो एक साथ पूरे एक्सप्रेशन को नहीं देख पा रहा है, वो एक इन्फिक्स में अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेता है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस eliminate the ambiguity that occurs in infix expressions. infix मतलब बीच में जो ऑपरेटर रहेगा, वो जो एम्बिग्विटीज अकर होती है उसमें उस चीज़ को एलिमिनेट करने में प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स हेल्प करता है. Now, prefix expressions are useful because the operators appear first, which allows evaluations without worrying about parenthesis or precedence during evaluation. तो basically अगर ये तुम्हारा prefix expression है कि plus a multiplied b and c, this means directly that b into c होगा and then a plus and then a would be added to it. So now in the comments or someone just unmute themselves or just tell me कि ये b into c पहले क्यों हो रहा है. I just want to see कि तुम लोग को समझ आ रहा है. Okay. Hello. Anyone? Yes, yes. Avinandan, yes. B into C पहले हो रहा है because in prefix the operator is before the operand, so B and C will be evaluated with multiply before it gets evaluated with A. See, तुम्हारा prefix वाला बात सही है, but the answer I was looking for, you have not given the correct reasoning. Anyone else wants to try before I explain? Just quickly try, guys. Chat में ही लिख दो अगर बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो. Anyone? ऑल राइट, सो आई ओनली टेल. ये b इंटू सी पहले इसीलिए हो रहा है बिकॉज ए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, प्लस से ज़्यादा है मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस. यहाँ पे हमने देखा ना इस टेबल पे कि इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है. तो चाहे ये दोनों ऑपरेटर्स अगर दिए हुए हैं जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और प्लस दिया हुआ है, तो इन दोनों में से प्रेसिडेंस ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन का है. तो चाहे वो किसी भी ऑर्डर में रहे और कहीं भी रहे, मल्टीप्लिकेशन पहले होगा. द पार्ट यू सेड अभिनंदन दैट इज़ करेक्ट कि बी और सी से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये ऑपरेंड्स ये है. तो बी एंड सी वाला ऑपरेंड वाला पार्ट इज करेक्ट, बट द रीजन यू गेव इज नॉट करेक्ट. दैट इज प्रेसिडेंस तुमने मेंशन नहीं किया. दैट इज द रीजन आई सेड यू आर पार्शियली करेक्ट. ओके, I hope that's clear for everyone. All right, all right. So now let's see the steps that we should follow to convert prefix to sorry, infix to prefix. इसको convert करने के लिए we don't use a new algorithm. मैं reason भी बताऊंगी. Instead of writing a completely new algorithm, we reuse the infix to postfix logic. Now, why do we do so? The reason is प्रीफिक्स के लिए अगर हम एक अलग एल्गोरिदम बनाएंगे ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाला हो जाता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. दैट इज़ द रीज़न वी जस्ट री यूज द सेम लॉजिक एज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स. तो हम एग्जैक्टली करते क्या है, we reverse the infix expression, we swap the brackets, given. नीचे हम एग्जाम्पल भी देख रहे होंगे, सो डोंट वरी इफ़ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, मैं अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगी. कन्वर्ट द एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स. तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स यहाँ रीयूज हो रहा है, पोस्ट फिक्स वाला लॉजिक. नाउ रिवर्स द रिजल्ट टू गेट द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन. So let's see how the flow works. Now the given expression is a plus b into c. To convert this to prefix, reverse it. तो यानी कि ये ब्रैकेट ऐसे आ जाता है c into b a plus c and then again brackets. Now swap the brackets, मतलब ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनके पोजिशंस को स्वैप कर दो. दिस कम्स हियर एंड दिस कम्स हियर. तो ये रहा तुम्हारा ब्रैकेट स्वैप करने के बाद एक्सप्रेशन. नाउ in this updated expression apply postfix. तो अगर तुम इसको postfix में कन्वर्ट करोगे
तो ये बन जाता है सी बी, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जा रहा है, ए एंड प्लस साइन यहाँ पे आ जा रहा है. दिस इज हाउ पोस्टफिक्स वर्क्स, जैसे कि अंशु समझा रहा था. And now, after this postfix part, you just simply reverse it. हम यहाँ पे brackets नहीं लगा रहे हैं. Please make a note of it. When we convert it to postfix or prefix or any other expression than infix, तो हम लोग brackets include नहीं करते हैं in the final expression. इसीलिए जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो वापस से ब्रैकेट्स को स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वी वुड जस्ट सिंपली रिवर्स दिस. तो ये प्लस ए into B C आ जाएगा, and this is the final prefix result obtained. I hope the given example is clear to you guys. Okay, चिराग, अभिनंदन, अभी, तनिषा, good. चलो फॉलो कर रहे हो ना, मतलब समझ में आ रहा है. Now let's jump into the dry run part, the most important part. एक बहुत थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत नहीं, बट इम्पॉर्टेंट है. Let's see, this is the given infix expression. Reverse this expression. As I said, हमारा step 1 यही होगा, reversing the expression. Just simply, मतलब इसे ना एक proper string में we would take input and then we would just do reverse. एंड उसके बाद वी वुड स्वैप द ब्रैकेट्स. जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो ओपनिंग ब्रैकेट बन जाएगा, जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो क्लोजिंग ब्रैकेट बन जाएगा, एंड यू वुड ऑब्टेन दिस अपडेटेड एक्सप्रेशन. नाउ टू दिस अपडेटेड एक्सप्रेशन, जस्ट कन्वर्ट दिस टू द पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक टेबल. अब ये स्टैक टेबल कैसे काम करता है, दिस इज द एक्चुअल ड्राई रन पार्ट जो मैं समझाऊंगी अभी तुम लोग को. नाउ सी, एक एक करके ना यहाँ पे यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक एक करके इसके कैरेक्टर्स यहाँ पे सिंबल्स बन के इट वुड कम, एंड ये कोई स्टैक में जाएगा, कोई आउटपुट में जाएगा. अब कौन स्टैक में जाएगा, कौन आउटपुट में जाएगा, वही इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो नोट करना. जब ब्रैकेट आता है तो वी पुश दैट इनटू द स्टैक. जब ऑपरेटर आता है, दैट इज माइनस, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, वो भी स्टैक में जाता है. बट जब कोई वेरिएबल या फिर वेरिएबल नहीं लेते, जब कोई ऑपरेंड यानी कि एल, के, ए या फिर कोई नंबर आता है, तो वो डायरेक्टली आउटपुट पे जाता है, वो स्टैक में नहीं आएगा. प्लीज़ नोट दिस, ये स्टैक में नहीं जाएगा. एल, के, ए, सी, बी, ये जो भी ऑपरेंड्स है, यहाँ पे नंबर्स भी हो सकता है. यहाँ पे वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ जस्ट वेरिएबल्स क्योंकि आसान है समझना. सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट कि जब भी ऑपरेटर्स आएगा या ब्रैकेट आएगा तो वो स्टैक में घुसेगा, वो स्टैक में पुश होगा, एंड जब भी ऑपरेंड्स आएंगे तो वो आउटपुट में डायरेक्टली चला जाएगा, आउटपुट एक्सप्रेशन में डायरेक्टली चला जाएगा. नाउ लेट्स सी, जब ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो वो स्टैक में पुश हो जाता है. देन एल आएगा तो वो आउटपुट में चला गया. नाउ ऑपरेटर डिटेक्टेड, तो ये स्टैक में आ जाता है. के आउटपुट में आ जाता है. डिविजन ऑपरेटर स्टैक में आ जाता है. ऐसे करते करते जब तक हमें क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता है, वी जस्ट कीप पुशिंग ईच थिंग्स टू द आउटपुट और टू द स्टैक. स्टैक में पुश होता है, आउटपुट में अपेंड होता है, ये याद रखना, स्टैक में हमेशा पुश हो रहा है. एंड जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया ना, तो हम लोग सिंपली जो भी जिस ऑर्डर में हमारे पास द ऑपरेटर्स आर प्रेजेंट, यू जस्ट सिंपली पॉप देम आउट. तो स्टैक लीफो यूज़ करता है, इसीलिए जो लास्ट ऑपरेटर है वो है डिविजन, एंड जो माइनस है वो उसके बाद पॉप हो जाता है. एंड दिस क्लोजिंग ब्रैकेट इंश्योर्स कि जो भी ऑपरेटर्स है जो प्रेजेंट है ब्रैकेट के अंदर टिल द ओपनिंग ब्रैकेट इज इनकाउंटर्ड, तब तक वो पॉप होते रहेगा स्टैक में से. ओके, तो बेसिकली ओपनिंग ब्रैकेट के पहले तक जितना भी ऑपरेटर्स है ना, वो पॉप हो जाएगा और वो फाइनल एक्सप्रेशन में, फाइनल आउटपुट में ऐड हो जाएगा, दैट इज डिविजन और माइनस. तो यहाँ तक क्लियर है? कैन आई प्रोसीड? ओके गाइस.
नाउ वी अगेन एनकाउंटर, यहाँ तक समझ जाओ कि ये हमारा जो ये L माइनस के डिवाइडेड बाई ए वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इज डन। नाउ हम लोग आते हैं ये मल्टीप्लाई के बाद वाले पार्ट पे। मल्टीप्लाई आता है, इट गेट्स टू द पुश टू द स्टैक। ब्रैकेट आता है, ओपनिंग ब्रैकेट, तो वो भी स्टैक में चला जाता है। सी आता है, वो डायरेक्टली आउटपुट में चला जाता है। डिवीजन ऑपरेटर आता है, वो भी स्टैक में पुश हो जाता है। एंड बी आता है, ये आउटपुट में अपेंड हो जाता है। नाउ जब माइनस आ रहा है, प्लीज़ नोट दिस, जब माइनस आ रहा है तब यहाँ से एक ऑपरेटर गायब हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जब भी हम किसी ऑपरेटर को पुश करते हैं ना, बिफोर दैट वी ऑलवेज चेक कि जो हमारा उसके पहले वाला जो ऑपरेटर है ना, उसका प्रेसिडेंस क्या ज़्यादा है। तो तुम लोग बताओ, क्या डिवीजन का प्रेसिडेंस ज़्यादा है माइनस से? व्हाट इज़ द रीज़न कि ये, या करेक्ट, डिवीजन का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है। यस यस यस, वेरी गुड। डिवीजन का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, दैट इज़ द रीज़न माइनस को पुश करने से पहले वी चेक कि माइनस से अगर ज़्यादा प्रेसिडेंस है तो ये वाला ऑपरेटर जो है, उसके प्रीवियस वाला जो ऑपरेटर है वो पॉप हो जाएगा और फाइनल आउटपुट एक्सप्रेशन में आ जाएगा। एंड दिस माइनस जस्ट सिंपली गेट्स पुश्ड इनटू द स्टैक। ना फिर से ए आता है तो ये आउटपुट वाले में अपेंड हो जाता है। एंड क्लोजिंग ब्रैकेट इंश्योर्स कि ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ लगेगा, ठीक है, तो ये माइनस क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद यहाँ पे अपेंड हो जाता है पॉप होकर। नाउ क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद बस एक ही ऑपरेटर बचा हुआ है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, जो कि पॉप होके फाइनली ओके। तो पॉप ये क्यों होता है? बिकॉज द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन इज हैज अकर्ड आफ्टर ए एंड आफ्टर द क्लोजिंग ब्रैकेट इज encountered, end of expression is noticed, and end of expression simply means stack में जितने भी items है, जितने भी elements है, वो सारे धीरे धीरे एक एक करके पॉप आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट था, तो इसीलिए स्टार जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, वो पॉप हो गया यहाँ पे। ऑल राइट, सो नाउ द पोस्टफिक्स expression obtained is this: LKA division minus CB division A minus multiplication. Now the step 4 is simply to reverse it. Again, reverse it to get the दीदी prefix. Yeah, say. डिवीजन माइनस में जो कन्वर्ट हुआ वो वाला लाइन Yeah. फिर से समझाइए ना। Which part? Is it this part? ये minus वाला? यस यस दीदी। Okay, okay. So this is a very important point. Thank you for pointing out, चिराग। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम लोग कोई ऑपरेटर को पुश करते हैं ना स्टैक में, तो उसके पहले वी ऑलवेज चेक वेदर द प्रीवियस ऑपरेटर दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टैक, क्या उसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है। अगर उसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो वो पॉप होके आउटपुट एक्सप्रेशन में ऐड हो जाता है, एंड उसके बाद जो ऑपरेटर यहाँ पे है वो पुश होता है यहाँ स्टैक में। इज दैट क्लियर, चिराग? यस दीदी। Okay, understood. All right. So after we have reversed this postfix expression, we get our final prefix expression, which is this. यहाँ पे ऑपरेटर्स पहले हैं एंड बीच में तो ये है। यही चीज़ बेसिकली डिनोट करता है कि तुम्हारा जो ब्रैकेट्स है ना, वो ब्रैकेट्स क्यों यूज़ होते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि ये जो बीच में ऑपरेटर्स है ना, वो ब्रैकेट का काम कर देते हैं बेसिकली। यहाँ पे ये चीज़ इसके बाद होगा, मतलब एक के बाद एक जो फ्लो है वो यहाँ पे हो जाएगा। वो तुम इवेल्युएट जब करोगे ना, प्रीफिक्स का इवेल्युएशन जब सीखोगे, इसके बाद ही वी वुड बी टीचिंग दैट ऑल्सो, तो उसमें समझ जाओगे कि कैसे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। अभी फिलहाल बस इतना तक जानो तो समझ आ जाएगा। नाउ आई जस्ट शो द कोड रियल क्विक, जस्ट अ मिनट। सो द ड्राई रन पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? कोड पे फोकस करें आप।
So is my VS Code available? Yeah, it's visible. ओके, तो अब आते हैं कोड पे। अब देखो ये कोड कितने लाइन का है, देख के डर लग गया होगा, 100 लाइन का कोड है, मतलब खता में कैसे लिखेंगे। अब सबसे पहले तो डरो मत, ये देखो कि हम हर एक चीज़ को ना ब्रेक डाउन करके अलग अलग फंक्शन में कर रहे हैं। इनफिक्स टू प्रीफिक्स में क्या क्या करना होता है, सबसे पहले हम करते हैं रिवर्स, जो भी एक्सप्रेशन मिला है वो रिवर्स करना है। उसके बाद उसका जो ब्रैकेट्स है उसे स्वैप करना है, और उसके बाद पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, जो कि पोस्ट फिक्स का जो लॉजिक है उसको बेसिकली हमें वापस से इम्प्लीमेंट करना है, रीयूज़ करना है। एंड पोस्ट फिक्स वाला एक्सप्रेशन जब हमें मिल जाता है, then we just reverse the expression once again to get the prefix expression. Okay, so before I proceed into the code, तीन important functions बता देती हूँ जो कि हम लोग को काम आ रहा है इसके अंदर। स्टैटिक बूलियन इज ऑपरेटर, ये है इज ऑपरेटर जो कि चेक करता है वेदर अ कैरेक्टर इज ऑपरेटर और नॉट। if c is plus minus multiplication divide exponent or mod, it returns true, else is it just returns false। ये है हमारा एक्सप्रेशन जो कि boolean रिटर्न कर रहा है, बेसिकली ट्रू और false। this checks whether a character or a symbol in the expression is is an operator or not, और ये प्रोग्राम को बता रहा है ये बात। अब आते हैं प्रेसिडेंस वाले पार्ट में। ये क्या कर रहा है कि एक ऑपरेटर जो आया कैर ऑप, ये स्विच केस के हेल्प से हमने देखा था राइट कि प्लस माइनस का जो प्रेसिडेंस है वो सबसे लो है, मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड का है वो मीडियम है, और एक्सपोनेंट का सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, बस एक चीज़ याद रखना, हायर द नंबर हायर इज द प्रेसिडेंस हियर। ओके, so plus minus has precedence 1, multiply divide and mod has precedence 2, returns 2, and exponent has exponent returns 3। तो बेसिकली मतलब वन इज लेस देन 2, एंड मतलब ऐसे समझो ना, नंबर वाइज समझो कि 3 सबसे बड़ा है, सो दैट्स वाई exponent has the highest precedence, and these three are in between, and plus minus has the lowest precedence। यही चीज़ ये precedence वाला जो function है ना ये check करता है। it just basically gives you the operator precedence, gives the operator precedence। okay, now let's move on to the associativity part। अब तुम लोग थोड़ा मुझे ना क्लियरली बताओ तो कि तुम लोग को associativity क्लियर है ना टॉपिक। प्रेसिडेंस तो तुम लोग को आई गेस समझ आ गया होगा, बट associativity टॉपिक क्लियर है राइट, नो वन हैज एनी डाउट्स। ओके ओके ओके, सो ये वाला चीज़ जस्ट ये फंक्शन जस्ट सिंपली चेक्स कि क्या ऑपरेटर एक्सपोनेंट है। अब एक्सपोनेंट को हम अलग से चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाकी ऑपरेटर्स जो है वो ऑलरेडी लेफ्ट एसोसिएटिव है, दैट इज लेफ्ट टू राइट उसका एसोसिएटिविटी काम करता है, बट सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट्स का राइट टू लेफ्ट करता है। दैट इज़ वाई ये राइट फंक्शन जो है वो चेक करता है कि अगर हमें एक्सपोनेंट सिंबल मिलता है देन इसका राइट एसोसिएटिविटी है, ये सिंपली प्रोग्राम को ये बता देता है। सो दिस checks for right associative operator। ओके, तो ये तीन बेसिक फंक्शंस है जो तुमको समझना चाहिए, दीज आर जस्ट द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब आते हैं हमारे फ्लो पे। सो लेट्स बिगिन विद द मेन फंक्शन फर्स्ट। जस्ट अ मोमेंट गाइस, या सो मेन फंक्शन में हम लोग तीन चीज़ कर रहे हैं। ओके, वी take the input expression, that is the infix expression from the user, we call the conversion function, that is prefix,
दैट आई हैव डिफाइंड हियर, ये पास करता है एक्सप्रेशन को, ओरिजिनल एक्सप्रेशन को, और प्रीफिक्स बाकी चीज़ संभालता है, एंड देन इट रिटर्न्स दिस टू द स्ट्रिंग। तो यहाँ स्ट्रिंग प्रीफिक्स में हमारे पास अपडेटेड फाइनल एक्सप्रेशन, दैट इज द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, इज obtained, and this println just prints the prefix expression, the final output. Okay, तो ये मेन फंक्शन जो है ना, दिस इज जस्ट वर्किंग एज अ ड्राइवर, दिस वर्क्स लाइक अ ड्राइवर फंक्शन। मतलब ये तुम्हारे प्रोग्राम का मतलब किसके बाद क्या होगा बस उतना बता देता है। यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के बाद कहाँ जाएगा, जो वेरिएबल मिला है, हम जो एक्सप्रेशन मिला है हमें, वो कहाँ पे क्या करना होगा वो होगा, एंड देन हाउ इट विल बी प्रिंटेड, बस वो इंश्योर करता है। मेन फंक्शन का इतना ही काम है। नाउ लेट्स कम टू द प्रीफिक्स फंक्शन जो कि यहाँ पे कॉल हो रहा है। This is the prefix function that I have mentioned. Expression is equals to, यहाँ पे देखो फिर से ये तुम्हारा जो मेन जो वर्क फ्लो है ना तुम्हारा, जो मैंने दिखाया था कि 4 मेन पॉइंट्स है, 4 मेन स्टेप्स है जो होता है इनफिक्स टू प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते टाइम। क्या क्या होता है? रिवर्स, स्वैप द ब्रैकेट्स, कन्वर्ट इट इनटू पोस्टफिक्स, एंड देन रिवर्स अगेन। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही हो रहा है। इन चारों स्टेटमेंट्स को ना जस्ट सिंपल इंग्लिश की तरह समझो। अभी ऐसा मत सोचो कि ये कोड स्टेटमेंट्स है। एक्सप्रेशन, रिवर्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन स्वैप ब्रैकेट्स, स्ट्रिंग पोस्ट यानी कि पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बना देता है ये वाला फंक्शन, एंड देन string pre reverses this postfix expression, and finally this returns, the statement returns the prefix expression to the main function here. All right, up till here, is that clear to everyone? Okay. Now let's go to the reverse function. तो हमारा पहला काम यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पहला काम एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू रिवर्स ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन पास हो रहा है। ये रहा हमारा रिवर्स फंक्शन। यहाँ पे स्ट्रिंग एस पास हो रहा है, दैट इज द एक्सप्रेशन दैट द यूजर हैज एंटर्ड। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर क्यों यूज कर रहे हैं? कैन एनीवन जस्ट गिव अ क्विक गेस? एनीवन हु हैज स्टडीड स्ट्रिंग बिल्डर? स्ट्रिंग बिल्डर क्यों यूज कर रहे हैं? स्ट्रिंग के साथ तो आराम से हो सकता था ना। आई गेस ये पार्ट कवर किया है प्रीवियस टीचर्स ने, क्योंकि वो म्यूटेबल होता है। या करेक्ट, string is not mutable and string builder is mutable. Another reason that I would say string builder use करते हैं instead of string buffer, because string builder is faster. Single thread वाले environment पे यहाँ पे कोई और thread available नहीं है, right? तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग string builder use करते हैं instead of string buffer. अगर ये doubt किसी को था तो I guess that's cleared now. तो यहाँ पे सिंपली कुछ भी नहीं होता है। स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर रिवर्स फंक्शन इज ऑलरेडी बिल्ट इन, तो हम लोग एस बी जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग बिल्डर का, एस बी डॉट रिवर्स कर देते हैं, एंड दिस रिवर्सेस द एक्सप्रेशन, एंड नाउ वी डू डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो एक्सप्रेशन वापस से यहाँ स्टोर करा रहे हैं ना, exp is a string object or a string literal, whatever you can say। ये string वेरिएबल के अंदर तुम एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट नहीं प्लेस कर सकते हो, इट वुड गिव अ कंपाइल टाइम एरर। सो दैट इज द रीजन हम लोग पहले इस चीज़ को रिवर्स करते हैं, एंड देन वी यूज डॉट टू स्ट्रिंग टू कन्वर्ट इट फ्रॉम स्ट्रिंग बिल्डर टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, नाउ लेट्स क्विकली कम टू द स्वैप ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे भी स्ट्रिंग बिल्डर सेम रीज़न से ही यूज़ हो रहा है। वी स्कैन फ्रॉम 0 टू द फुल लेंथ ऑफ द एक्सप्रेशन, एंड एक एक कैरेक्टर एक बार स्कैन हो रहा है, एंड ये जस्ट सिंपली चेक करता है कि अगर तुम्हारा ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, this C is equals to opening bracket, then the result would append closing bracket, क्योंकि हमारा काम क्या है? स्वैप करना। तो अगर ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा एक्सप्रेशन में, और अगर क्लोजिंग ब्रैकेट
मिल रहा है एक्सप्रेशन में, देन जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन दैट इज दिस वन, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट आ जाएगा. ओके, जस्ट द ऑपोजिट हैपेंस. जो भी मिल रहा है उसका ऑपोजिट ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे अपेंड कर देते हैं. अपेंड इज ऑल्सो a built-in function inside string builder if you have studied. एंड अगर इन दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है देन जस्ट सिंपली जो भी कैरेक्टर है उसे अपेंड कर दो विदाउट एनी चेंजेस. ओके, और यहाँ पे अगेन स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट है तो इसीलिए रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग करके हम उसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे. ऑलराइट, टिल हियर आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ये पढ़ा है तुम लोगों ने बट स्टिल मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ तो देख लो समझ आता है अगर. यस, सो हियर कम्स द स्टैक पार्ट. हमारा जो पोस्टफिक्स है ना वो स्टैक टेबल यूज़ करता है, तो यहाँ पे काम होता है स्टैक का. कैरेक्टर स्टैक इज डिफाइंड हियर एंड स्ट्रिंग बिल्डर आउटपुट. ये है तुम्हारा जो फाइनल आउटपुट एक्सप्रेशन है, मतलब फाइनल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो बन रहा है वो ये है आउटपुट. ओके, यहाँ पे भी एक एक करके हर एक कैरेक्टर पार्स होता है एंड इट इज़ चेक्ड. सो एक एक केस है ये, ठीक है. सो हियर कम्स द केस वन. दिस इज द केस वन वेयर इफ इट इज़ अ लेटर और अ डिजिट, दैट इज अगर कोई ऑपरेंड आता है, if it is an operand, then it is pushed to the output expression directly, not given to the stack. Then it's appended to the output string or expression, I should write output expression. Yeah, now comes the case 2 where we see an opening bracket. If you see an opening bracket, simply just push it. क्लोजिंग ब्रैकेट होगा तो अलग तरीके का होगा, बट ओपनिंग ब्रैकेट है तो सिंपली जस्ट पुश इट. ओपन ब्रैकेट. अब यहाँ पे आता है क्लोजिंग ब्रैकेट वाला सीन. केस 3 क्लोजिंग ब्रैकेट. So here we check while stack is empty, while stack is not empty. यहाँ पे not expression है, ये देखना, just don't miss it. While stack is not empty and stack dot peek is not equal to opening bracket, till then output append stack dot pop. इस पूरे स्टेटमेंट, इस पूरे ब्लॉक का सिंपल शॉर्ट मीनिंग यही है that till you that when you have encountered a closing bracket, simply start popping each operator till you encounter a opening bracket once again. मतलब एक closing bracket आया ना, उसके बाद जब तक तुम कोई opening bracket या फिर तुम्हारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता है तब तक तुम्हें पॉप करते रहना है. एंड पॉप करते करते कहाँ स्टोर करना है? आउटपुट डॉट अपेंड. मतलब कि आउटपुट एक्सप्रेशन में सिंपली उसे पॉप करते रहना है और ऐड करते रहना है. और यहाँ पे स्टैक डॉट पॉप भी होगा, सो दैट इज ऑल्सो रिटन अलग से. ये क्लोजिंग ब्रैकेट वाला पार्ट क्लियर हो गया. अब आते हैं अगर कोई ऑपरेटर आता है. केस 4 इज व्हेन एन ऑपरेटर is encountered. Now here what happens is, sorry, am I audible? Am I audible guys? Just confirm. Okay, all right. Yeah, so when an operator is encountered, सबसे पहला तो यही चेक करना है कि स्टैक इज नॉट एम्प्टी. अब उसके बाद आता है ये पार्ट जो मैं बता रही थी ना, प्रेसिडेंस स्टैक डॉट पीक इज ग्रेटर देन प्रेसिडेंस ऑफ सी. मतलब कि तुम्हारा जो ये जो प्रीवियस ऑपरेटर है, क्या उसका प्रेसिडेंस बड़ा है फ्रॉम द प्रेजेंट ऑपरेटर.
इफ येस देन वो वाला ऑपरेटर जो है वो पॉप हो जाएगा, यानी कि प्रीवियस ऑपरेटर जो है वो पॉप हो जाएगा, एंड स्टैक डॉट पुश दैट इज जो प्रेजेंट ऑपरेटर है वो पुश हो जाएगा स्टैक में, और जो प्रीवियस ऑपरेटर है वो आउटपुट में अपेंड हो जाएगा। आई होप दैट्स क्लियर। एक और कंडीशन ये है कि इफ द प्रेसिडेंस ऑफ दिस, या आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस, कि अगर ये दोनों इक्वल प्रेसिडेंस के भी होंगे ना, then also you need to pop it. If both of these have same precedence, that is the previous operator and the current operator, then, and if it is having right associativity, यहाँ पे right associativity comes into play, that is if both the previous operator and the current operator have the same precedence and it is right associative, then you pop the previous operator and append it into the output expression, and the current operator is pushed into the stack. And along with all of this, we are obviously checking कि stack.peak ये opening bracket encounter करता है या नहीं. All right. So all of these cases are covered. Case 4 तक. Case 1 is if an operand is encountered, वो directly output expression में चला जाएगा. Case 2 is when an open bracket is encountered, वो simply stack में push हो जाएगा. Closing bracket वो अपना यहाँ पे जो काम कर रहा है वो pop करेगा अपना operators. And when an operator is encountered, तब वो precedence check करेगा पहले एंड देन अपना काम करेगा पॉप करने का, या फिर डायरेक्टली स्टैक में पुश कर देगा करंट ऑपरेटर. ठीक है, ये काम हो गया. नाउ दिस थिंग चेक्स फाइनली जब एंड ऑफ एक्सप्रेशन जब एनकाउंटर हो रहा है, तब ये सिंपली ये वाइल लूप चला देंगे हम, दैट इफ टिल स्टैक इज नॉट एम्प्टी कीप पॉपिंग द ऑपरेटर्स, ताकि जब एंड ऑफ एक्सप्रेशन आता है, मैंने कहा ना कि सारे ऑपरेटर्स को हम एक के बाद एक वी विल जस्ट पॉप देम एंड अपेंड देम टू द फाइनल आउटपुट स्ट्रिंग. And after that we are doing the same thing, output dot to string, क्योंकि string builder से we need to convert it to string object, and ये यहाँ पे return हो जाता है string post पे. Now string post is being passed to reverse function once again, because we need to reverse that expression to get the prefix expression. All right, यहाँ पे ये return prefix and यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा string prefix, which is getting finally printed to this to the output screen. So let's just try to run this code. मैंने जो एग्जाम्पल यूज़ किया है, आई जस्ट रन दैट. This is the expression. Here, this is the prefix expression. You can check this. I'll provide the output along with the code and the example that I gave in the dry run. तुम लोग ये वापस से recheck कर सकते हो. This is the prefix expression that we are getting. So this is the code part. अगर तुम लोगों को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हुआ है समझने में, तो प्लीज़ just unmute yourself or write it in the chat. Or if you've understood, just give a thumbs up. Just छोटा सा एक part बचा हुआ, and we'll cover it and we'll move on to the next thing. Okay, great. Just add a few comments. This reverses the string. Swaps the brackets. This generates a postfix expression. All right. So let's go back to our screen.
Okay. Just revising my part, why we are using stack. Stack is used because it is used to store the operators temporarily, and it checks each and every operator's precedence one by one before popping or pushing into the stack. And operands go directly to the output. Operands are not involved into the stack. Just please remember this. Operators are pushed into the stack until precedence rule allow them to be popped. The characteristics of the code are time complexity is big of n because each character is processed at least once. Page complexity is also big of 1 because stack stores the operators, and this code uses stack data structure. This maintains precedence rules and handles parenthesis correct. And this is the last part that I would say. Difference between infix to postfix and infix to prefix. Infix to postfix में क्या होता है, कोई रिवर्सिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट इनफिक्स टू प्रीफिक्स में पहले एक्सप्रेशन को रिवर्स करना होता है. पोस्टफिक्स में क्या होता है, डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाता है, बट प्रीफिक्स में वी नीड टू फर्स्ट रिवर्स, देन वी नीड टू क्रिएट द जनरेट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, and then we need to reverse it again to get the prefix expression. So the postfix one is slightly simpler and prefix one has more steps. So this is my question, that which one of them would you prefer, or which one of these would the compiler of a computer prefer? Just quickly guys. Does anyone know? इसमें से कौन सा यू थिंक इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करना चाहिए या फिर इनफिक्स टू प्री फिक्स करना चाहिए, कौन सा सिंपलर होगा कंप्यूटर के लिए समझना? Postfix. Okay, postfix. Chirag is saying prefix. Anubrata says prefix. Okay, so the answer is yeah, postfix. Usually infix to postfix is preferred because it has a simpler algorithm. You can see right कि हमें बार बार reverse करना पड़ रहा है when we are using prefix. But the evaluation here in the postfix is simpler. When you see the evaluation process of prefix, you will understand that the evaluation of postfix is actually simpler. And this is the reason, both of this is the reason why infix to postfix is preferred more over this prefix one. But yeah, समझना तो ज़रूरी है, right? So just summing up my points, and we would end with our topic really quick. Infix is easy to read for humans, but prefix and postfix remove the ambiguities. Infix to prefix conversion uses 4 steps, that is reversing. One more thing would be included, that is swapping of the brackets. Postfix and then reversal trick. Stack is used to temporarily store operators. Stack data structure is used. This is the reason why it is used. Precedence decides operators' priorities. Associative decides the evaluation order when precedence is same. Exponent operator is right associative and others are left associative. And finally, we go with the last line. Operands go directly to the output, whereas operators wait in the stack. Okay, so this is it from my side, guys.